Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and safe. I welcome you all to the class of statistics. We are studying chapter number 4, measures of dispersion. Today we will discuss advantages of standard deviation, disadvantages of standard deviation, Shepard correction for grouping error, and empirical relation between measures of dispersion, and some examples related to these topics we will discuss here, and questions from exercise, and at the end your home assignment. Now, advantages of standard deviation. It is rigidly defined. It is based on all the observations. It is capable of further mathematical treatment. It has great practical utility in sampling and statistical inference. It is easily calculated by working with an arbitrary origin or as mean. Disadvantages of standard deviation. It is affected by extreme values. Extreme values means smallest values or largest values. It is neither simple to understand nor easy to calculate. The process of squaring the deviation increases the work. Now, Shepard correction for grouping error. The mean and standard deviation or variance from group data are computed on the assumption that all values lying in the class are equal to their class mark. This assumption is not strictly true, thus an error is introduced. In the calculation of the mean, however, there is no appreciable error because positive and negative errors cancel each other. In the calculation of the variance or standard deviation, since all the values are squared, the squares of the errors will all be positive and will not cancel each other. Thus there will be a non-compensating error called grouping error. An adjustment for grouping error is made by reducing the variance by h square divided by 12, where h is the class interval size. Thus we have corrected variance is equal to variance of group data minus h square by 12, and it is further equal to s square minus h square by 12. This is the formula for corrected variance. This correction is called Shepard correction. Shepard correction may be applied in case of group data. When the data are continuous, the frequency curve tends to approach the baseline on both the sides, and the original measurements are reasonably precise. Now the topic is empirical relation between measures of dispersion. It is very important. Number 1, mean dispersion is equal to 0.7979 of its sigma. Number 2, semi-interquartile deviation or quartile deviation is equal to 0.6745 of sigma. These relationships hold approximately for moderately skewed distribution. Number 3, mean deviation is equal to 4 by 5 of sigma, and semi-interquartile range it is equal to 2 by 3 of sigma, and semi-interquartile range is also equal to 5 by 6 of mean deviation. The example 4.25 from your book on page 165.
Discuss the validity of the empirical formula for the weight distribution of 120 students. ये एग्जाम्पल हम पीछे जो करते आए हैं चैप्टर 3 में भी हमने ये डाटा इसका वहाँ से लिया गया है, क्योंकि पीछे हम इसी डाटा का हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन डेविएशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने पीछे जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि मीन डेविएशन हमने फाइंड करना है, और मीन डेविएशन जो है वो किसके इक्वल होता है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे, वो क्या है? 19.03 पाउंड। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 15.08 मीन डेविएशन। ठीक है, अच्छा जी, या फिर हम इसको मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? 4/5 के, जो जिसको हम 0.7979 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करके भी हम देख सकते हैं कि आया इसके इक्वल आता है। अब देखिए मीन डेविएशन हमारे पास क्या है? 15.08 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 19.03 है, तो ये भी 0.79 के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सेकेंड हमने इसमें फाइंड करना है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, which is equal to 2/3 of standard deviation और 2/3 of sigma। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन भी इसको हम बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। या फिर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन भी, उसका आंसर भी हमारे पास है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम इसको जो है वो डिवाइड करके देखेंगे कि आया ये वैल्यू जो है 0.67 के इक्वल आती है। देखें क्वार्टाइल डेविएशन की हमने वैल्यू पुट की 12.74 और स्टैंडर्ड डेविएशन की 19.03, तो हमारे पास 0.67 ही आ रही है वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल 4.23 on page 165. Apply Shepard correction to the standard deviation of the data. डाटा हमें ये गिवन है, वेट्स हैं और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेट्स हैं 110 to 119, 120 to 129, 130 to 139, 140 to 149, 150 to 159 and so on, 210 to 219। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 4, 17, 28, 25, 18, 13, 6, 5, 2, 1, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रहा है 120। हमने अब शेपर्ड करेक्शन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है? करेक्टेड वेरिएंस जो है वो इक्वल होता है s² माइनस h² बाई 12। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा कि s² में से वेरिएंस में से h² बाई 12 जो है ये वैल्यू हम उसमें से, और h क्या है इसमें? क्लास इंटरवल साइज है। ठीक है, ये हम वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टेड वेरिएंस आ जाएगा। तो इसमें करेक्टेड वेरिएंस लाने के लिए सबसे पहले तो हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से सिंपल फार्मूला, क्योंकि आप बाउंड नहीं है इसमें, आपकी मर्जी है, आप कोई भी फार्मूला वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का आप इसमें जो है वो लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला इसमें। ठीक है, अब x बार मीन जो है x बार फाइंड करना है उसमें, जो कि इक्वल है उसका भी सिंपल से सिंपल फार्मूला, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, अब समेशन एफ एक्स के कॉलम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा कॉलम चाहिए? एक्स का कॉलम चाहिए, मिड पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट्स क्या हैं? लोअर और अपर लिमिट को का हम मीन ले लेते हैं। क्या होगा? 110 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास फर्स्ट जो मिड पॉइंट आएगा वो 114.5। इसी तरह से 120 प्लस 129 डिवाइडेड बाय 2, 124.5।
130 प्लस 139 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 134.5। 140 प्लस 149 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 144.5। 150 प्लस 159 154.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम x जो है वो मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस x के कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x हमारे पास फर्स्ट है 114.5, तो उसको उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो fx हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 114.5। इसी तरह से नेक्स्ट जो x की वैल्यू है वो है 124.5 और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 498 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 134.5 जो है नेक्स्ट x की वैल्यू, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी fx की 2286.5। ठीक है, इसी तरह से 144.5 है नेक्स्ट x की वैल्यू, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 28 है, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट fx की वैल्यू आ जाएगी 4046। ठीक है, तो इसी तरह से हम fx का कॉलम फाइंड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट हम fx का कॉलम का सम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 18740। इससे हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। समेशन fx की जगह उसका सम पुट करेंगे 18740 डिवाइडेड बाय समेशन f है हमारे पास 120, तो मीन हमारे पास आ गया 156.1667। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मीन। अब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हम कॉलम कौन सा फाइंड करेंगे नेक्स्ट, fx स्क्वायर का हमें चाहिए, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फार्मूला देखें, s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन fx ओवर समेशन f होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। अगर अंडर रूट हटा दें और यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट इसका हटा देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब हमें कॉलम चाहिए समेशन एफ एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम कॉलम फाइंड करेंगे एफ एक्स स्क्वायर का। एक्स के कॉलम का स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। 114.5 का स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो x की है वो है 124.5, इसका स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट 62001। ठीक है, इसी तरह से 134.5 है नेक्स्ट वैल्यू, उसका स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 17, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 307534.25। ठीक है, इसी तरह से हम सारा एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 2970030। ठीक है, अब हमने फार्मूला में इसकी ये जो जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं सम है इनको हमने पुट करना है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 2970030 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आ रहा है 120 माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये मीन जो अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, 156.1667 और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे, इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है अंडर रूट 362.2223। ठीक है, और इसका अंडर रूट लेने से एस स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है 19.03 पाउंड्स। अब हमें वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस चाहिए तो हम बेशक शुरू में ही आप अंडर रूट ना लें, स्क्वायर ही फाइंड कर लें या फिर इसी वैल्यू का आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है जैसे अंडर रूट के अंदर ही आ रही है ना 362.223 पाउंड्स। ठीक है, और एच देखें इसमें क्लास इंटरवल साइज जो है वो 10 का है, 110 to 119 देखें ना, ये 10 का डिफरेंस है इनके अंदर। 129 में से 119 माइनस कर दें तो आपके पास 10 आ जाएगा, या फिर x में आप देखें, x में भी आपको पता चल रहा है कि 10 का डिफरेंस है। अब h इसमें 10 है
तो करेक्टेड वेरिएंस क्या आ जाएगा, एस स्क्र माइनस एस स्क्र बाई 12। एस स्क्र आ रहा है 362.2223 माइनस एच आपके पास 10 है, 10 का स्क्र 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। 100 को डिवाइडेड बाय उसको डिवाइड करेंगे 12 से और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टेड वेरिएंस आ गया 353.8890 पाउंड्स। ठीक है, अब करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी आंसर का जो करेक्टेड वेरिएंस है इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आ रही है वैल्यू 18.81। नेक्स्ट एग्जांपल इज 4.22। ठीक है, और ये है ऑन पेज 164 फ्रॉम योर बुक। ए पार्ट है इसका। ठीक है, ए पार्ट इसका क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट्स फॉलिंग बिटवीन द लिमिट्स एक्स बार प्लस माइनस एस, एक्स बार प्लस माइनस 2s, एक्स बार प्लस माइनस 3s। इस तरह का आपको प्रैक्टिकल भी एक मैं दूंगी, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह जब खुलेंगे और हम प्रैक्टिकल करेंगे इसके, तो इस तरह का प्रैक्टिकल में भी आता है क्वेश्चन और वैसे भी आपको आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये डाटा आप देखें बुक के ऊपर 138, 164, 150, 132, 144, 125, 149, 157, 146, 158, 140, 147, 136, 148 एंड सो ऑन। ये आपको 40 स्टूडेंट्स के जो हैं वेट्स दिए गए हैं। ठीक है, 40 वैल्यूज़ हैं आपके पास ये। अब अनग्रुप डाटा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें फाइंड करने के लिए आपको मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। आप मीन फाइंड करेंगे, अनग्रुप डाटा के मीन का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपने इन तमाम वैल्यूज़ का सम लेना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास हैं 40। ठीक है, और सम आपके पास जो है, जो भी आ रहा है इसका, उसको आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ रही है, मीन आपके पास आ रहा है 146.8। ठीक है ना, 146.8। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसका क्या फार्मूला है, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो आपने नेक्स्ट कॉलम फाइंड कर लें। अब आपने टेबल बनाना है, यहाँ पे मैंने आपको टेबल बना के नहीं बताया हुआ, लेकिन आपने टेबल बनाना है और उसमें फिर आपने एक्स का कॉलम पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम, फिर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम आपने बनाना है। ठीक है, अब एक्स माइनस एक्स बार यानी हर एक्स की वैल्यू में से 146.8 जो है मीन, वो आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आ जाएगा। फिर इसी तरह से उस कॉलम का आप स्क्वायर लेते जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास उसका सम आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। उसका सम करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे आप 40 के ऊपर, एन आपके पास 40 है, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 12.9 पाउंड्स। ठीक है, अब आपने फर्स्ट फाइंड करना है एक्स बार प्लस माइनस एस, यानी एक्स बार में एस जो है वो एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, आपके पास टू लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, 146.8 आपके पास एक्स बार है, इसमें आप प्लस करेंगे 12.9 तो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी 159.7 और माइनस करेंगे तो आपके पास ये लोअर लिमिट आ जाएगी 133.9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे डाटा में जो आपको वैल्यूज़ गिवन है 40 वैल्यूज़, उनमें आप देखें कि 133.9 से लेकर 159.7 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, आपने उसमें देखना है कि कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर लाई कर रही हैं। तो 28 वैल्यूज़ हैं जो कि इसके अंदर लाई कर रही हैं, तो आपने लिखना है 28 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ कितनी है 40 इंटू 100। आपके पास परसेंटेज आएगी एक्स बार प्लस माइनस एस की, जो परसेंटेज आ जाएगी वो है 70%। नंबर 2 आपने फाइंड करना है एक्स बार प्लस माइनस 2s।
अब आपने x बार 146.8 पुट किया प्लस माइनस 2 इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 12.9। 12.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यू आपकी आ रही है 25.8। अब एक दफ़ा इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 121 और इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 172.6। ठीक है। अब आपने डाटा में देखना है 121 से लेकर 172.6 तक कि कितनी वैल्यूज जो हैं उसके अंदर लाई कर रही हैं। ठीक है। तो ये 37 वैल्यूज हैं जो कि इसके अंदर लाई कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 37 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 40 इंटू 100, तो ये परसेंटेज इसकी आ जाएगी 92.5। थर्ड इसमें है एक्स बार प्लस माइनस 3s। ठीक है। आपने एक्स बार की वैल्यू पुट की 146.8 प्लस माइनस 3 इंटू 12.9, तो 12.9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो भी वैल्यू आती है उसमें माइनस करेंगे, 146.8 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 108.1 आ जाएगा और उस वैल्यू को आप 146.8 में प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 185.5। अब आपने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान देखना है डाटा के अंदर कि इनके दरमियान कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान तकरीबन सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 40 की 40 वैल्यूज़, तो आप इसमें परसेंटेज जब लेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 ये आपके पास 100% आ जाएगा। ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन आपको आता है, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल है 4.21 पार्ट ए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। द फॉलोइंग table gives means and standard deviations of scores obtained by two groups of students. Find the mean and standard deviation of the combined group of 50 students. ठीक है। आपने इसमें कंबाइंड मीन फाइंड करना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है फॉर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब आप देखें इसमें ग्रुप 1 जो है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं आपके पास और उसका मीन दिया हुआ है 54.0 और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 8.23। इसी तरह से ग्रुप 2 है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है और मीन उसका है 40.3 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 8.00। ठीक है। अब हमने इसको फाइंड करना है कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड मीन का क्या फार्मूला है ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब पहले तो आप डाटा लिखें, इसमें डाटा आपके पास, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसका डाटा लिखते हैं। क्या है आपके पास, n1 है 40, n2 आपके पास है 10, x1 बार है आपके पास 54.0 और x2 बार की वैल्यू है 40.3, s1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। S1 आपके पास है 8.23 और S2 है 8.00। अब सबसे पहले हम कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे। कंबाइंड मीन का फार्मूला हमारे पास है x डबल बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 हमारे पास है 40 और x1 बार की वैल्यू 54 प्लस n2 है 10 और x2 बार की वैल्यू है 40.3। ठीक है। डिवाइडेड बाय n1 40 प्लस n2 है 10। अब हमारे पास जो सम आ रहा है इन मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर ऐड करने के बाद 2563 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 50 हो गया। तो कंबाइंड मीन हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 51.26। ठीक है। अब हमने कंबाइंड वेरिएंस यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या तो शुरू से इसके ऊपर अंडर रूट आप लिख लें या फिर कंबाइंड वेरिएंस फाइंड करके एंड पे उसका अंडर रूट ले लें तो तब भी ठीक है। ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला जो हमारे पास है जो कि हमने टू सेट ऑफ डाटा के लिए जो हमने पढ़ा है, एक और भी पढ़ा है हमने ना, दो फार्मूले इसके आपने पढ़े हैं। ठीक है। एक जनरल फार्मूला है और एक ये था कि जब टू सेट ऑफ डाटा आपके पास हो, सेट्स ऑफ डाटा, तो उसके लिए ये फार्मूला हम कंबाइंड वेरिएंस का हम यूज़ करते हैं।
और ये फार्मूला किसके इक्वल है, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर इंटू x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला में हमारे पास वैल्यू सारी मौजूद है, हम इसमें पुट कर देंगे। n1 हमारे पास 40 है और s1 स्क्वायर की s1 जो है वो हमारे पास 8.23 है, तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस n2 हमारे पास 10 है और s2 की वैल्यू 8.0 है, तो उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय n1 40 प्लस n2 जो है वो 10 है, प्लस n1 40 इंटू n2 10 डिवाइडेड बाय n1 40 प्लस n2 10 होल स्क्वायर। और इसी तरह से x1 बार हमारे पास क्या है 54.0 माइनस x2 बार की वैल्यू है 40.3 और इसका होल स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास s स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 97.0167। अब हमने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो क्या पढ़ा है हमने कि वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी वैल्यू का हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 9.85। Now the example 4.21 part B. A distribution consists of three components with frequencies 40, 25 and 35 and having means 65, 66 and 72 and standard deviation 10.5, 9.2 and 8.3 respectively. Find the combined mean and the combined standard deviation. सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम डाटा को लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो वैल्यूज़ को लोकेट करने में, ठीक है। तो क्या होगा, n1 हमारे पास है 40, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो हैं n1 40 है, n2 25 और n3 की वैल्यू 35। हैविंग मीन्स अब x1 बार क्या है हमारे पास 65, x2 बार है हमारे पास 66 और x3 बार की वैल्यू है 72। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है s1 हमारे पास है 10.5, s2 की वैल्यू 9.2 और s3 की वैल्यू है 8.3। अब हमने कंबाइंड मीन सबसे पहले फाइंड करना है, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, एक्स डबल बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 हमारे पास है 40 और x1 बार की वैल्यू है 65 प्लस n2 25 और x2 बार है हमारे पास 66 प्लस n3 की वैल्यू है 35 और x3 बार की वैल्यू है 72 डिवाइडेड बाय n1 40 प्लस 25 प्लस 35, ये आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा 67.7। अब हमने फाइंड करना है कंबाइंड वेरिएंस जो कि आपके पास जब टू सेट्स ऑफ डाटा होता है, तो अभी मैंने आपको पीछे जो एग्जांपल इसका ए पार्ट कराया है उसमें हमने यूज़ किया है वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। और जब टू से ज़्यादा सेट्स ऑफ डाटा हों आपके पास तो आप जनरल फार्मूला ये जो है कंबाइंड वेरिएंस का ये हम यूज़ करते हैं, जो कि इक्वल है स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एन आई एस आई स्क्वायर प्लस एक्स आई बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एन आई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ फर्दर इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस x2 बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर प्लस x3 बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, 40 n1 हमारे पास 40 है, s1 की वैल्यू है 10.5 और उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस x1 बार हमारे पास है 65 और कंबाइंड मीन जो है एक्स डबल बार वो हमारे पास क्या आया है 67.7, इसका होल स्क्वायर प्लस n2 की वैल्यू 25 और s2 दिया हुआ है 9.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस x2 बार जो है वो है 66 माइनस एक्स डबल बार की वैल्यू जो कि ऊपर हम कैलकुलेट कर
चुके हैं वो है 67.7 इसका होल स्क्वायर प्लस N3 35 और S3 की वैल्यू है 8.3 इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस X3 बार है 72 माइनस X डबल बार या कंबाइंड मीन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो है 67.7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 N प्लस N2 प्लस N3 ये है 40 प्लस 25 प्लस 35 इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंबाइंड वेरिएंस आ रहा है 99.4815। अब हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम इसी वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 9.974। Now example 4.20 part A on page 161. Compute standard deviation of the observations 4, 8, 16, 20 and 12. Compute the standard deviation in the following cases after adding 5 to each observation, subtracting 3 from each observation, multiplying each observation by 2, dividing each observation by 4. Verify the results using the properties of the standard deviation. ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। हमारे पास जो डाटा है वो क्या है 4, 8, 16, 20 एंड 12। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले तो हम इस जो डाटा हमें गिवन है इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर लेंगे। मीन क्या होगा x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। इन तमाम वैल्यूज का हम सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज वो हैं 5। तो हमारे पास मीन आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 12। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन एक्स माइनस कोई भी फार्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो फार्मूला मैंने इसमें यूज़ किया वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें एक्स बार आपको 12 दिया हुआ है। फर्स्ट एक्स की वैल्यू है 4 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 होल स्क्वायर इस सारे डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। एन इस सारे को सॉल्व करने के बाद और इसका अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 5.657, ठीक है। अब सेकंड उसने जो पार्ट इसमें कहा है एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन। अब हर ऑब्जर्वेशन में हमने 5 जो है वो ऐड करना है। 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 9 में चेंज हो जाएगी, ठीक है, 9 आ जाएगी। इसी तरह 8 में 5 करेंगे ऐड तो वो हमारे पास 13 हो जाएगा और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 और 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17। अब ये जो न्यू डाटा हमारे पास आ गया एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन, इसका हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें मीन जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज का सम लेना है और उनको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है जो कि 5 है। तो हमारे पास मीन इनका आ जाता है 17, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह से जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है उसी तरह हम फाइंड करेंगे समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू है 9 माइनस मीन आया 17 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू 13 थी 13 माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस 21 माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 17 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। इस सारे को सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 5.657। अब हमने प्रॉपर्टी के थ्रू इसको वो भी देखना है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 5 यानी 5 जो है वो क्या है कांस्टेंट किसी वेरिएबल में जो है वो ऐड हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल आता है। आपने पीछे कल के लेक्चर में हमने ये देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
x प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 5, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन उसका उस पर अप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिवीजन की कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x ऊपर आपने फाइंड किया था, वो क्या आया था 5.657। तो देखें हमारे पास यहाँ भी वैल्यू 5.657 ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो उस पर इफेक्ट नहीं करता। थर्ड इसमें जो फाइंड करना है वो है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, कि हर ऑब्जर्वेशन में से जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करते जाएं। अब 3 4 में फर्स्ट वैल्यू 4 है, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 8 है, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 16 में 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आ जाएगा। इस तरह से 12 में से 3 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमने इसका भी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, ठीक है। अब इन वैल्यूज का मीन हमने फाइंड किया तो देखिए वो हमारे पास 9 आ रहा है, और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन भी हम इसी तरह से हम इसका फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 5.657। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम इसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी देखें, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3 तो कांस्टेंट है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के। तो अब देखें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x भी आपके पास ऊपर 5.657, और आपने जब इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका स्टैंडर्ड डिवीजन लिया तो वो भी 5.657 ही आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो किसी वेरिएबल में, तो उसके स्टैंडर्ड डिवीजन पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के। थर्ड इसमें जो हमने फाइंड करना था वो है इसमें सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग ईच, फोर्थ इसमें है मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2, कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक और डाटा आ जाएगा, फिर उसका हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम उसका फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन उसका मीन उसका आ रहा है 9, ठीक है। 45 हो जाएंगी वैल्यू, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है 4 2 8 हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू 16 हो जाएगी, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगी। इसी तरह से 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 12 को करेंगे 24। अब उसका भी मीन हम फाइंड करेंगे, तो मीन हमारे पास आ जाएगा x बार 24, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास आ रहा है 11.314, ठीक है। अब इसमें देखें आपने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि चेंज ऑफ स्केल से ये इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो या वेरिएबल किसी कांस्टेंट पे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो अब देखें हमने कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो चेंज हो गया, वो 11.314 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो चेंज हो गया। तो इसी तरह से हमने इस चीज़ को भी प्रूव कर दिया कि चेंज ऑफ स्केल से ये इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट उसमें है कि डिवाइडिंग बाय 4 द ऑब्जर्वेशन। अब डिवाइडिंग बाय 4, ये डिवाइडिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4, अब हर ऑब्जर्वेशन को 4 पे हमने डिवाइड किया, जैसे 4 फर्स्ट वैल्यू 4 है उसको 4 करेंगे डिवाइड तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से 8 को 4 पे करेंगे 2 आ जाएगा, 16 को 4 पे करेंगे 4 आ जाएगा, 20 को 4 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 12 को 4 पे करेंगे तो 3। तो ये एक और डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो उसका मीन हम फाइंड करेंगे जो कि इक्वल टू 3 आ रहा है, और इसका फिर स्टैंडर्ड डिवीजन भी उसी तरह से हम फाइंड करेंगे, और फिर प्रॉपर्टी के थ्रू हम देखेंगे, देखें ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन उसका 1.414 आ रहा है, 5.657 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज हो गया ना, कि
किसी भी उस पे वैल्यू कांस्टेंट पे वेरिएबल जब डिवाइड होता है, वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट पे डिवाइड होता है तो ये क्या है, ये चेंज ऑफ स्केल है और इससे इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने जो सिक्स्थ इसमें पार्ट है वो है कि फाइंड वेरीफाई द रिजल्ट्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वेरिफिकेशन मैंने आपको साथ साथ बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.20, इसका बी पार्ट वो हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें जो है वैल्यूज गिवन है हमें, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 2, 3, 6, 7 एंड 12, यूज योर आंसर्स टू फाइंड द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 5, 10, 15, 30, 35 एंड 60, और थर्ड सेकंड इसमें है 6, 7, 10, 11 एंड 16, और थर्ड है 0, 1, 4, 5 एंड 10। ठीक है। अब आपको ये डाटा दिया हुआ है, फर्स्ट जो है आपके पास वो है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 2, 3, 6, 7 एंड 12। अब इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड कर लिया। मीन आपके पास क्या आ गया, इसका 6 आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हमने SX से डिनोट कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि 3 सेट्स ऑफ डाटा है हमारे पास, तो हमने इसको SX से डिनोट किया, इस तरह से नेक्स्ट को SY से, और फिर हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। हेयर फर्स्ट हमने फाइंड करना है। अब इसका मीन हमारे पास 6 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.52 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है, उसमें हमें डाटा दिया हुआ है 10 है, 15 है, 30, 35 एंड 60। अब हमने उसका भी मीन फाइंड करना है। अब y इज इक्वल टू 5x। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या है हेयर y इज इक्वल टू 5x, तो उसका मीन भी क्या होगा, उसके 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने मीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। y बार इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स बार की कांस्टेंट, जो उससे डाटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मीन भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें आपके पास y आ गया, ये 5x, यानी 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से, यानी हर वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ डाटा हमें ये बता रहा है, ये वाला, ये वैल्यूज जो हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5x है। अब इसका मीन क्या होगा, y बार इज आल्सो इक्वल टू 5x बार। ठीक है। अब एक्स बार हमारे पास ऊपर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 5 6 30, तो y बार हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 के इक्वल। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, एस वाई से उसको हमने डिनोट किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी हम इसको लिख सकते हैं, एस वाई भी इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x। जब इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होता है तो 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है, एस एक्स जो ऊपर हमने फाइंड किया वो है 3.52, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा 17.6। अब नेक्स्ट जो डाटा हमें गिवन है थर्ड, उसमें 6, 7, अब वो डाटा हमें बता रहा है कि ये जो ऊपर जो हमें ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है 2, 3, 6, इसको जो है क्या किया गया है, इसमें 4 ऐड किया गया है, यानी 2 में 4 ऐड करें तो फर्स्ट वैल्यू 6 हो जाएगी, इसी तरह से 3 में 4 ऐड करें तो 7 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हमें जो दी हुई हमें ये बता रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के वेरिएबल में कांस्टेंट जो है वो ऐड हुआ है, तो इसका मीन में भी वही कांस्टेंट ऐड होगा, y बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 4। अब x बार हमारे पास 6 है और 4 उसमें ऐड होगा तो y बार की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी उसको आप लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या है आपके पास x प्लस 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के इक्वल आ जाएगी वैल्यू ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर क्या है 3.52, यानी s ऑफ y जो है वो s ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x।
अब नेक्स्ट जो इसमें थर्ड हमें डाटा दिया हुआ है वो है 0, 1, 4, 5 एंड 10। वो क्या हमें बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि x जो है वैल्यूज़ जो हमें ओरिजिनल दी हुई हैं ऊपर डाटा में, उसमें 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसी के मीन में भी वही 2 जो है कांस्टेंट उस वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 2। y बार इज इक्वल टू x बार है 6 माइनस 2, इसमें करेंगे तो हमारे पास y बार आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस 2। y किसके इक्वल है? x माइनस 2 के इक्वल है। तो y की जगह x माइनस 2 हम पुट कर देंगे, तो इसको जब स्टैंडर्ड डिवीजन इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, जो कि इक्वल है 3.52 के। Students, I have explained these parts in previous slide. Question number 4.10 from your exercise. The question is, by multiplying each of numbers 3, 6, 2, 1, 7, 5 by 2 and then adding 5, we obtained 11, 17, 9, 7, 19, 15. What is the relationship between the means and the standard deviations of the two sets? ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन है, वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3, 6, 2, 1, 7, 5। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 6 है। हमने सबसे पहले इसका मीन फाइंड करना है। अभी हमने जो एग्जांपल पीछे की है बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, मीन हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, समेशन x डिवाइडेड बाय n से मीन आ गया, जो कि 24 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास 4 आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। x आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 3 और मीन आया है 4। 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गई वैल्यू 28। इसका सम आ गया। ठीक है, उसको नंबर ऑफ वैल्यू 6 है उस पर डिवाइड करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 2.16। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि उसने एक और सेट ऑफ डाटा जो कि उसने बताया कि उसको 2 से मल्टीप्लाई इन वैल्यूज़ को किया गया और उसमें ऐड 5 किया गया। 3 2 सा 6 हो जाएगा और उसमें 5 ऐड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। इसी तरह से 6 वैल्यू है नेक्स्ट, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 5 ऐड किया तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई 17। इसी तरह से 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 5 ऐड किया तो वो वैल्यू आ गई 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसका हमने मीन फाइंड किया जो कि इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन हमने फाइंड किया, और वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी फार्मूले से उसको कर सकते हैं। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर, इससे आप फाइंड कर लें तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ गया 4.32। ठीक है, अब हमने जो है इसको देखना है वैल्यूज़ को, और इसमें आप देखें समेशन y और y स्क्वायर जो है इसका कॉलम बेशक आप फाइंड कर लें। y आपके पास क्या है? 11 है, 17 है, 9 है, 7 है, 19 है और 15 है, और इसका y स्क्वायर भी फाइंड कर लें तो y स्क्वायर का आपके पास 11 27 सम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, द numbers in the first and second set are connected by the relation y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसका मीन भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें कांस्टेंट ऐड होगा 5। 2 से मीन मल्टीप्लाई होगा, मीन हमारे पास x बार ऊपर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। ठीक है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8 प्लस 5 क्या आ रहा है? 13। देखें y बार भी हमारे पास 13 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू भी हमने ये प्रूव कर दिया है।
और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डिवीजन जब 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के। अब 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हमारे पास है 2.16, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आ जाएगा 4.32। जो देखें मैंने इसमें आपको नज़र आ रहा है ना 4.32, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y जब हमने उन वैल्यूज से कैलकुलेट किया तो वो भी 4.32 ही आ रहा था। तो हमने प्रॉपर्टी से भी इसको ये प्रूव कर लिया है। Now question number 4.11 part A from your exercise. The question is, the scores obtained by 5 students on a set of examination papers were 70, 50, 60, 70 and 50. These scores are changed by adding 10 points to all scores, increasing all scores by 10%. What effect will these changes have on the mean and on the standard deviation? ठीक है, अब आपने ये बताना है, ये पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 70 x की वैल्यूज़ हैं 70, 50, 60, 70 एंड 50। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, उसने फर्स्ट उसने कहा है एडिंग 10 पॉइंट्स टू ऑल स्कोर्स। ठीक है, क्या मतलब है, y इज इक्वल टू x प्लस 10। जब 10 उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 प्लस 10 80 हो जाएगा, 50 प्लस 10 60, इसी तरह 60 प्लस 10 70, और 70 प्लस 10 80, और 50 प्लस 10 60 आ जाएगा, और y का सम हमारे पास 350 आ जाएगा, और x का सम हमारे पास आ रहा है 300। ठीक है, और थर्ड उसने कहा है कि उसमें 10 थर्ड उसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स बाय 10%। अब 10% का क्या मतलब है, मैंने आपको ये साइड पे करके बताया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.1। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी x की है 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो ये आपके पास 7 वैल्यू आती है। अब इसको 70 में ऐड करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने z से डिनोट किया है, z का कॉलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 77। इसी तरह से 0.1 आप जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 0.1 से, तो आपके पास 5 आता है, और ये 5 आप 50 में ऐड करेंगे तो आपके पास 55 आ जाएगी। फिर आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, और फिर उस जो भी वैल्यू आती है ना उसको आपने ऐड करना है 60 में, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 66। इसी तरह से 70 में फिर 70 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, जो कि 7 वैल्यू आएगी, 70 में ऐड करेंगी 77। 50 को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगी 0.1 से, और 5 वैल्यू आ रही है तो उसको आपने ऐड करना है 50 में, तो वो आपके पास 55 आ जाएगी। इस तरह z का कॉलम आपके पास आ जाएगा, और इसका सम आ रहा है 330। अब आपको मीन आपने फाइंड करना है, x बार फाइंड करना है, फिर y बार फाइंड करना है, फिर z बार आपने फाइंड करना है। x बार आपके पास समेशन x ओवर n से आ रहा है, वो आपके पास है 300 है। ठीक है, 300 को आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं कितनी, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड करना है तो आपके पास x बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर y बार आपने फाइंड करना है। y बार क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू समेशन y ओवर n, और y का सम आपके पास 350 है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं, तो ये y बार आ जाएगा 70। ठीक है, इसी तरह से z बार आपने फाइंड करना है। z बार क्या होगा, आपके पास 330 आपके पास समेशन z है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास z बार आ जाएगा 66। और फिर हर एक का आपने स्टैंडर्ड डिवीजन भी फाइंड करना है, x बार का भी, x का भी आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, आपने y का भी स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, और फिर आपने z का भी स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। x का स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ रहा है 8.94, और y का स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास वो भी 8.94 आ रहा है, और z का स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ रहा है 9.84। ठीक है, अब आपने इसको बताना है कि क्या है, इफ़ 10 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 10 अगर उसमें ऐड कर दिया गया तमाम ऑब्जर्वेशंस में,
तो मीन जो है, ठीक है, मीन इज आल्सो इंक्रीज बाय 10 बट स्टैंडर्ड डिवीजन रिमेन्स अनचेंज। अब मीन उसका जो है वो 10 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सेम रहेगा। ठीक है, जब 10 जो है वो ऐड करते हैं, देखें एक्स और वाई में आपने देखना है, एक्स का जो मीन है वो आपके पास 60 आ रहा है, तो वाई का मीन आपके पास 10 उसमें ऐड होके क्या हो गया 70। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्योंकि आपने मीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड होता है किसी वेरिएबल में तो उसके मीन में भी वही कांस्टेंट ऐड होगा। यानी 10 अगर उसमें वेरिएबल में ऐड हो रहा है तो उसके मीन में भी 10 ऐड हो गया। देखा है ना आपने, एक्स बार आपके पास 60 था तो वाई बार आपके पास क्या आ गया 70, क्योंकि आपने 10 हर वेरिएबल में उसके वैल्यूज में 10 ऐड करते गए। अब लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का सेम है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब सेकंड इसमें था कि इफ 10% ऑफ स्कोर्स आर एडेड, उसमें 10% जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, उसको हमने z से डिनोट किया है। ठीक है, the mean is also increased by 10%, standard deviation is also increased by 10%, कि मीन भी उसका 10% इंक्रीज हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसका 10% जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देखें 66 है ना, तो 10% उसमें आप 60 में आप ऐड करें। ठीक है, 60 है आपका एक्स बार, तो उसमें आप 10% के हिसाब से 0.1 से उसको मल्टीप्लाई करें और फिर जो भी वैल्यू आती है उसको आप उसमें ऐड करें, तो वो आपके पास 66 आ रहा है। 6 वैल्यू आएगी ना मल्टीप्लाई करने से, 0.1 से 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगी, और फिर उसको 60 में जब ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगी। तो देखिए आपके पास z बार 66 आ रहा है। इसी तरह से आपने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ z को देखें, आपके पास x का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 8.94 आ रहा है, तो आपके पास z का जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो 9.84। ठीक है, तो बी पार्ट देखें इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। A child is born to Mrs. X every year for 7 consecutive years. Compute the standard deviation of the children's age when the youngest is 1 year old. ठीक है, and second इसमें है कि the youngest is 8 years old. Why do the answers of 1 and 2 coincide? ठीक है, अब फर्स्ट आपने देखें, फर्स्ट इसमें देखें आपने फाइंड करना है द यंगेस्ट इज 1 years old। ठीक है, अब एक्सिस में क्या होगा 1 2 3, हर साल एक बच्चा आ रहा है। ठीक है, 7 कंसेक्टिव ईयर्स हैं, तो 1 से लेकर 7 तक एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, आप ये फार्मूला उसमें यूज़ करें तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। एक्स आपके पास 28 उसका सम आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 148। समेशन एक्स आपके पास क्या आ रहा है 28, तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन इसका फाइंड करें जो कि आपके पास आ रहा है इक्वल टू 2। सेकेंड इसमें है कि जो है द यंगेस्ट इज 8 years ओल्ड। यंगेस्ट जो है वो सबसे छोटा जो बच्चा है वो 8 years ओल्ड है, तो हर एक का एक साल का है, तो उससे बड़ा जो होगा वो 9 years का होगा, उससे बड़ा 10 का, उससे बड़ा 11 का। इस 7 कंसेक्टिव ईयर्स में कितने बच्चे हैं 7 बच्चे हैं, तो 11 जिसकी एज है उससे जो बड़ा होगा वो 12 का होगा, उससे बड़ा 13 का, और उससे बड़ा जो है वो 14 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका y आ गया, y का सम आपका आ रहा है 77। फिर y स्क्वायर आपने लेना है, हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा 875। आपने इसका भी मीन फाइंड करना है। ठीक है, y बार फाइंड करें तो वो आपके पास 11 आ रहा है और स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ रहा है 2। ठीक है, अब आपने देखना है कि द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 and 2 आर सेम बिकॉज स्टैंडर्ड डिवीजन रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट। पीछे जो कि आप पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये इससे हमने प्रूफ कर दिया, इससे हमने बता दिया। क्वेश्चन इज 4.12 पार्ट ए, कैलकुलेट मीन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग वेट मेजरमेंट्स इन ग्राम्स ऑफ 20x। ठीक है, कि अनग्रुप डाटा है और इसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी है, मीन का आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करना बताया है और शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बताया है। ये आप
पढ़ चुके हैं, पीछे भी आपको बता चुकी हूँ मैं, और आप इसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आपने कैलकुलेट करना है। एक्स की वैल्यूज़ आपके पास हैं, इससे आप डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं है, लेकिन मैंने आपको इससे बता दिया कि चलो ये वाला मेथड भी आप यूज़ करें। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, ठीक है। ए आपके पास क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन जो है वो हमने 60 ले लिया, 60 और ए जो है, और हर एक वैल्यू में से 60 को माइनस करते जाएं तो आपके पास डी का कॉलम आ गया, फिर डी स्क्वेयर आपको चाहिए, और डी का सम जो है वो 99 आ रहा है, समेशन डी 99 डिवाइडेड बाय एन आपके पास है 20, तो ये आपके पास एक्स बार आ जाएगा 64.95 ग्राम्स। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इससे फाइंड कर लेंगे, जो कि समेशन डी स्क्वेयर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वेयर अंडर रूट के इक्वल है, तो ये आपके पास आ रहा है 5.08 grams. B part इसका है find the number of observations, the proportion of observations and the percentage of observations lying within the limits x bar plus minus x, x bar plus minus 2s and x bar plus minus 3s for the data in part A। ठीक है, पार्ट ए में आपके पास जो डाटा है, ये जो अभी जिसका हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड किया है, तो इसमें एक्स बार, अभी आपने एक्स बार भी फाइंड किया जो कि 64.95 आ रहा है आपके पास, और स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 5.08 आ रहा है। अब आपने एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी और माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। तो 64.95 में प्लस करेंगे 5.08 तो अपर लिमिट आपकी 70 आ रही है, और एक्स बार में स्टैंडर्ड डिवीजन आप माइनस करेंगे 64.95 में 5.08 तो ये 60 आ रही है। अब आपने इस डाटा के अंदर देखना है 60 से लेकर 70 तक जो वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ उसके अंदर लाइक आ रही हैं, तो वो आपने देखना है। तो इसके अंदर 20 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाइक आ रही हैं, तो आपने इसकी प्रोपोर्शन फाइंड करना है, जो कि 20 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 20 हैं और इसके अंदर 14 वैल्यूज़ आपकी लाइक आ रही हैं 60 to 70 तक की जो आपके पास रेंज आई है, ठीक है। और 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 तो ये आपके पास 70% वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड केस में एक्स बार प्लस माइनस 2s है, ठीक है। तो एक्स बार में आपने एक दफ़ा प्लस करना है 2s को और एक दफ़ा आपने माइनस करना है। तो एक्स बार प्लस 2s जब करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, वो आपके पास 75 आ रही है, और एक्स बार माइनस 2s करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी जो कि 55 आ रही है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन को और फिर आपने मीन में ऐड करना है और दूसरी दफ़ा मीन में सबट्रैक्ट करना है। अब आपने देखना है 55 से 75 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो जो दोनों इसमें शामिल हैं, बोथ इंक्लूसिव उसने कहा है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों उसके अंदर शामिल हैं, ये दोनों लिमिट्स भी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 19 वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करेंगे तो ये 95% वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। केस 3 आपके पास है एक्स बार प्लस माइनस 3s, ठीक है। उसमें एक दफ़ा उसमें पहले तो स्टैंडर्ड डिवीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मीन में एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अपर लिमिट आपकी 50 आ गई और लोअर लिमिट आपकी क्या आ गई 81। तो आपने इन दोनों के दरमियान, इस लिमिट के दरमियान आपने वैल्यूज़ देखनी है 50 to 81, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगी 20 वैल्यूज़, तमाम की तमाम इसके अंदर लाइक आ रही हैं, तो ये आपके पास 100% आ जाएगा इसका, ठीक है। अब है क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 4.13 part A। For a group of 50 boys, the mean and the standard deviation of scores on a test are 59.5 and 8.38. For a group of 40 girls, the mean and the standard deviation of scores are 54.0 and 8.23. On the same test, find the mean and the standard deviation for the combined group of 90 children। अब इसमें आपने combined mean और combined स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें n क्या है आपके पास 90 है,
ठीक है। N1 50 है, N2 जो है वो 40 है। टोटल सब मिला के आपके पास N जो है गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के आपके पास जो टोटल N आ रहा है वो 50 + 40 90 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से X1 बार आपके पास 59.5, X2 बार 54 और S1 आपके पास 8.38 और S2 जो है वो है 8.23। ठीक है। तो x डबल बार सबसे पहले हमने कंबाइंड मीन फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का फार्मूला आपके पास n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। कंबाइंड मीन आ रहा है 57.06। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला आपने लगाना है जो कि इक्वल है n1 s1 स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस x डबल बार होल स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस x2 बार माइनस x डबल बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अंडर रूट। अब इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 8.75। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.14, इसका ये पार्ट है। कंप्यूट द मीन वेजेस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फॉलोइंग टू फैक्ट्रीज, विच फैक्ट्रीज वेजेस आर मोर कंसिस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। आपको मैं पीछे डेफिनेशन में भी इसकी वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की बता चुकी हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है जब हम देखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मोर कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है जिसका ज़्यादा होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, या जिसका कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, ये आपने बताना है। ठीक है। कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपने बताना है कि क्या होगा। अब इसमें देखें हम फाइंड कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 अप टू 55 to 60। ये हमारे पास वेजेस हैं, क्लासेस हैं। और फैक्ट्री ए की ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है। दोनों की अलग-अलग हमने फाइंड करना है। अब एक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें मीन फाइंड करने के लिए एक्स चाहिए। ठीक है। तो एक्स हमारे पास है 32.5, 30 + 35 किया हमने। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से 35 + 40 डिवाइडेड बाय 2 37.5 आ जाएगा। 42.5, 47.5, 52.5 एंड 57.5। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें सिंपल फार्मूला यूज़ करें। मैंने यहाँ पे कोडिंग मेथड यूज़ किया है, तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग मेथड यूज़ करें। आप सिंपल fx वाला फार्मूला फाइंड करें और उसी से ही आप मीन जो है वो कैलकुलेट करें। समेशन fx वाला फार्मूला आप लगा दें। यहाँ पे मैंने कोडिंग मेथड यूज़ किया है, u फाइंड किया उससे और फिर कोडिंग मेथड से मैंने मीन कैलकुलेट किया, 44.5 आ गया। और इसी कोडिंग मेथड को ही यूज़ करते हुए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो थी वो आपको गिवन है। फैक्ट्री ए की वो है 12, 18, 29, 32, 16 एंड 18। आप यू का कॉलम भी फाइंड कर चुके हैं, तो आप एफ यू का कॉलम दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर यू का स्क्वायर लेके उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो एफ यू स्क्वायर आ जाएगा। इससे आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड किया जो कि वैल्यू आ रही है 6.85। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होता है एस ओवर एक्स बार, क्योंकि कंसिस्टेंसी को फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हैं वो फाइंड किए जाते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। एस ओवर एक्स बार के इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंटू 100। ठीक है। अब एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 6.85 और मीन की वैल्यू आ रही है 44.5 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 15.39%। इसी तरह से फैक्ट्री बी के लिए हम फाइंड करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4, 10, 31, 67, 35 एंड 15। हम यू के कॉलम से इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यू का स्क्वायर लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ यू स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। हमने मीन फाइंड किया, मीन हमारे पास आ रहा है फैक्ट्री बी के लिए 47.56 और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास आ रहा है 5.67।
फैक्ट्री बी के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, एस डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास फैक्ट्री बी के लिए आ रहा है 5.6, और मीन उसका फैक्ट्री बी के लिए आ रहा है 47.56 इंटू 100। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फैक्ट्री बी 11.77%। द वेजेस ऑफ फैक्ट्री बी आर मोर कंसिस्टेंट, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.14 का बी पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, क्या है, एन एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स, वेज अर्नर्स फॉर्म ए के हैं 586 और फॉर्म बी के हैं 648। एवरेज मंथली वेज इन रुपीज़ फॉर्म ए 52.61 और फॉर्म बी के लिए 47.50। वेरिएंस ऑफ वेजेस फॉर फॉर्म ए 100 एंड फॉर फॉर्म बी 121। फर्स्ट पार्ट है विच फॉर्म ए और बी पेज द लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस। सेकंड है इन विच फॉर्म ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, ये हमने बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। N1 हमारे पास है 586, N2 है 648, X1 बार की वैल्यू 52.60, X2 बार की वैल्यू है 47.50, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ठीक है, अब हमने मीन को देख के बताना है। फर्स्ट जो पार्ट है हमने मीन को देख के ही बताना है कि आया फॉर्म ए जो है वो लार्जर अमाउंट पे कर रही है मंथली वेजेस में या कि फॉर्म बी। ठीक है, अब X1 बार हमारे पास है 52.60 जो कि ग्रेटर है फॉर्म बी के मीन से जो कि 47.50 है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर्म ए पेज लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस विच इज 52.60। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है S1 हमारे पास आ जाएगा √100 और S2 वेरिएंस हमें दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। S1 10 आ रहा है और S2 हमारे पास हो जाएगा 11। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए हम फाइंड करेंगे फॉर्म ए S1 ओवर X1 बार इंटू 100। S1 हमारे पास है 10 और X1 बार की वैल्यू 52.60 इंटू 100, तो ये हमारे पास 19.0114 आ जाएगा। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फॉर्म बी हम फाइंड करेंगे जो कि S2 और X2 बार इंटू 100। S2 की वैल्यू है 11 और X2 बार की वैल्यू है 47.50 इंटू 100, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी हमारे पास आ जाएगा 23.1579%। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखना है कि कौन सी जो है किसकी वेरिएबिलिटी जो है वो ग्रेटर है। तो जिसका वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर होगा उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो ग्रेटर होगी। फॉर्म बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, 23.1579, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। क्वेश्चन है 4.15, इसका सी पार्ट है। The following scores are made by two batsmen A and B in a series of inning. A की वैल्यूज हैं, B की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट है who is better as a run getter और सेकंड पार्ट है who is more consistent player। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट का तो पता चल रहा है कि मोर कंसिस्टेंसी आपने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप फाइंड करेंगे और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए हु इज बेटर एज अ रन गेटर, इसके लिए आपने मीन फाइंड करना है, जिसका मीन ज्यादा होगा वो जो है ही इज बेटर एज अ रन गेटर। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। अब
टीम ए और टीम बी दोनों हैं। टीम ए की वैल्यूज़ जो हैं उसको एक्स से डिनोट कर लें तो वो आपकी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं 12, 15, 6, 73 अनग्रुप डाटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है 2-4 बार। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यूज़ हैं, फिर आपको x स्क्वायर चाहिए वेरिएंस के लिए, आप समेशन x ओवर n तो इससे इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि x बार a आपके पास आ रहा है 48 और एस ए जो है स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर टीम ए वो आ रहा है 56.48। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए जो कि एस ए ओवर एक्स बार ए इंटू 100 से हमारे पास आ रहा है 117.69%। इसी तरह से फॉर बैट्समैन बी के लिए हम फाइंड कर लेंगे, एक्स बी बार फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। ठीक है, 47, 12, 76, 48 ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, उससे हम समेशन x डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमारे पास x बार b आ जाएगा 33.6 और एस बी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बैट्समैन b वो हमारे पास आ रहा है 23.67। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर b फाइंड करेंगे जो कि आ रहा है 70.45। अब मीन हमने देखना है कि बैट्समैन ए जो है उसका मीन क्या है 48 है और दूसरे का आपके पास है 33.6। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि बैट्समैन ए का जो मीन है इट इज़ ग्रेटर सो ए इज़ बेटर एज रन गेटर। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट था उसमें आपने कंसिस्टेंस के विच इज़ मोर कंसिस्टेंट वो आपने बताना है। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका काम है, बैट्समैन बी का काम है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज लेस सो बी इज बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन इज 4.17 पार्ट बी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। Question is a manufacturer of television tubes has two types of tubes A and B. The tubes have respective mean lifetimes x bar A is equal to 1495 hours and x bar B is equal to 1895 hours and standard deviation SA is equal to 280 hours and SP is equal to 310 hours. Which tube has the greater absolute dispersion and रिलेटिव डिस्पर्शन, ये हमने देखना है। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होगा, मीन को हम देखेंगे और रिलेटिव डिस्पर्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मीन इसका देखें किसका मीन जो है वो ग्रेटर है और किसका जो है लेस है। ठीक है, एक्स बार बी जो है उसका मीन ग्रेटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो ट्यूब ए है उसकी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसकी ज़्यादा है, एज मीन ऑफ ट्यूब बी इज़ ग्रेटर सो ट्यूब बी हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ट्यूब बी हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे ट्यूब ए और ट्यूब बी दोनों के लिए। ट्यूब ए का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारे पास 18.72% आ रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ट्यूब बी हमारे पास आ रहा है 16.37। अब ट्यूब बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारे पास कम है तो उसका जो है ट्यूब ए का जो है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डिस्पर्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्यूब ए इज़ ग्रेटर देन बी सो ट्यूब ए हैज़ ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, ट्यूब बी मीन ऑफ ट्यूब बी ग्रेटर है तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ट्यूब बी की ज़्यादा है और रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो किसकी ज़्यादा है, ट्यूब ए की। ठीक है, 4.17 इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू सीरीज इज गिवन, कंपेयर द वेरिएबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच सीरीज। ठीक है, ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है काफ़ी दफ़ा। ये डाटा आपको गिवन है, आपने इसकी वेरिएबिलिटी को जो है वो कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वन टू सेट्स ऑफ डाटा आपको गिवन है। तो इसमें देखें आपको वैल्यूज़ जो हैं जैसे समेशन n1 है आपके पास 150, समेशन x1 माइनस 100 इज इक्वल टू 180। अब ये x1 माइनस 100 का क्या मतलब है, ये आपके पास समेशन d के इक्वल है क्योंकि x माइनस a होता है ना,
और समेशन डी की वैल्यू आपके पास है 180, ठीक है, आगे मैंने आपको करके बताया हुआ है, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 100 है, ठीक है। आगे आपके पास समेशन एक्स 1 माइनस 100 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, समेशन डी स्क्वायर के इक्वल है। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास D1 स्क्वायर की 245320 आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेकेंड सेट ऑफ डाटा है N2, उसमें है 200, और समेशन x2 माइनस 100, उसमें भी a की वैल्यू 100 ही है, और समेशन d जो है D2 वो आपके पास है 250, और समेशन D2 स्क्वायर समेशन x2 माइनस 100 होल स्क्वायर वो है 43850। आपने इसका मीन फाइंड करना है 1 के लिए भी, और फिर सेकंड सेट ऑफ डाटा के लिए भी, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के फाइंड करने हैं। फिर आपने देखना है कि सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2, सो देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन फर्स्ट सीरीज, कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसमें वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है।